Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and a very good morning to all of you. Class 5, today we will be doing exercise number 4B, question number 14, 15 and real life stories. In first lecture we have to do question number 14 and 15. Question number 14 is you have to round off these values up to the 2 decimal places, and in this question we have the 4 parts. I have given you the concept of round off in your class up to the 1, 2 and 3 decimal places. Here you have to round off till 2 decimal places. Open your maths notebooks, make a content page, draw margin lines and mention detail. First of all, make a content page, write unit number 4, exercise number 4B, question number 14 and 15 and draw a figure. Then on the next page, mention date and day properly, write question number 14, round off to 2 decimal places. And first part is 6.137, write solution. And now look and listen carefully that how to have to round off these values. You have to round off up to the 2 decimal places. It means कि decimal place के बाद आपके सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज़ आनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में आपको 3 वैल्यूज़ गिवन है. आपको पहले मैंने ये बताया था कि आपने देखना है कि आपका लास्ट डिजिट 5 से ग्रेटर या 5 है. अगर आपका लास्ट डिजिट 5 या 5 से ग्रेटर है तो आपने उसके पीछे वाली वैल्यू में 1 ऐड कर देना है. अब हमने क्योंकि 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है तो आपने इस वैल्यू को चेक करना है कि ये आपकी 5 से ग्रेटर है या लेस है. तो 7 इज़ ग्रेटर देन 5, so we have to add 1 in 3. So after adding 1 in 3, our answer will be 6.14. So you will write equal 6.14 and this is your answer up to the 2 decimal places, and at the end mention a separated line. So I have solved part A here for you. Now part B, C and D you will be solving by yourself by using the same concept that if the number is 5 or greater than 5 you have to add, and if the number is less then you will round off to the down value. Okay, now our next question is question number 15. Estimate the following sums and differences. First of all listen that estimate is the second name of round off. एस्टिमेट का मतलब होता है कि हमने इस वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करने के बाद ऐड करना है. तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा कि यू एस्टिमेट द फॉलोइंग सम्स एंड डिफरेंसेस, सम मीन्स यू हैव टू ऐड द नंबर्स एंड डिफरेंसेस मीन्स यू हैव टू सबट्रैक्ट द नंबर्स. एंड एस्टिमेट मीन्स कि आपने उसको राउंड ऑफ करना है वैल्यूज़ को पहले, उसके बाद उसका आपने रिजल्ट कैलकुलेट करना है. वो रिज़ल्ट आपका एग्जैक्ट नहीं होगा लेकिन आपके गिवन क्वेश्चन के आंसर्स के अकॉर्डिंग उसके नियर. So yeah, for in question number 15 you have part A 3870 plus 5420. Now open your maths notebooks and write question number 15, draw margin lines, mention date and day and write the question estimate. Part A is 3870 plus 5420. Write solution and first of all understand properly. In this question whenever you have to estimate the sums then make sure you have to round off the values to the nearest 100 value. तो जब भी आपने 100 नियरेस्ट वैल्यू पे राउंड ऑफ करना है तो आपने उसकी सबसे पहले टेंस वैल्यू पे देखना है. टेंस वैल्यू को चेक करना है क्या वो 5 है या 5 से ग्रेटर है या फिर 5 से लेस है. अगर तो 5 से ग्रेटर होगा तो आपका पिछले नंबर पे 1 ऐड हो जाएगा, और अगर 5 से लेस होगा तो वो हमारे पास डिक्रीज़ कर जाएगा यहाँ पे एज इट इज़ आएगा. तो अब यहाँ पे आप सबसे पहले देखिए अपने फर्स्ट नंबर पे 3870 आपका 1 टेंस प्लेस पे देखिए. फर्स्ट वाला डिजिट हमारा 1, उसके बाद टेंस, हंड्रेड्स. हमने नियरेस्ट 100 आपने सबसे पहले देखा कि ये आपका 1s, 10s, 100s. तो नियरेस्ट 100 वैल्यू पे राउंड ऑफ करने के लिए आपने टेंस वैल्यू देखनी है कि वो 5 है या 5 से ग्रेटर है. अब 7 हमारे पास क्योंकि 5 से ग्रेटर है तो पीछे वाली वैल्यू में हम लोगों ने क्या कर देना है 1 ऐड कर देना है. तो एस्टिमेट में हमेशा आपने इस तरह से साइन डालना है करली. और 3870 तो ये देखिए ये 5 से ग्रेटर था तो हमने पीछे क्या कर दिया 1 ऐड कर दिया. जब हमने 1 ऐड किया तो हमारे पास ये नंबर क्या बन जाएगा 3900. 3900 इसलिए आया क्योंकि हम लोगों ने नियरेस्ट 100 वैल्यू पे उसे राउंड ऑफ किया. अब आपका सेकंड नंबर है 5420. अब इसका भी आपने नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है, और 100 पे राउंड ऑफ करने से पहले आपने देखना है कि आपके टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है वो क्या 5 है या 5 से ग्रेटर है या फिर 5 से लेस है. तो जब भी हमारे पास वैल्यू 5 से लेस होती है तो राउंड इट डाउन, हम उसे डाउनवर्ड राउंड करते हैं. तो 5420 जब आपने देखा कि आपका टेंथ प्लेस पे क्या है 2 इज़ लेस देन 5 तो आपने इसको राउंड ऑफ किया टू द डाउनवर्ड. तो ये आपका नियरेस्ट 100
पे राउंड ऑफ होके आंसर आपको देगा 5400, यानी कि वैल्यू डिक्रीज़ करती है, और अगर 5 से ग्रेटर होता है तो आपकी वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है कि आपने अब 3900 और 5400 को एस्टिमेट करके आंसर निकाला है, ये आपने इस वैल्यूज़ का, तो अब हमने इन दोनों को ऐड करना है। तो अब आपने ऐड करना है 3900 प्लस 5400 प्लस 0 plus 0 is 0, then 0 plus 0 is 0, 9 plus 4 is 13, 3 here, 1 carry, 5 plus 3 plus 1 will be get answer 9. So after estimating we got the answer 9300. So this is the end of the question, and at the end you will be mentioning a separated line. So I have solved question number 15 part A. Now D, C, D, E, F with the same method you will be solving by yourself on your notebooks.